குணத்தை நாம் அறிந்து அதன் அடிப்படையிலே நாம் ஆராதிக்கலாம். आज के दिन में भी परमेश्वर के गुणों में से एक गुण को अध्ययन करके उसके अनुसार हम आराधना करेंगे. எப்பொழுது நாம் அவருடைய குணத்தை அறிந்து ஆராதிக்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு படி முன்னேறி செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. जब कभी हम परमेश्वर के गुण को समझ के आराधना में प्रवेश करेंगे तो हमारे जीवन में एक और कदम आगे हम बढ़ते हैं. சில வேளைகளில் இதை யோசிக்கும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு ஆசி பரிவாரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். मैं एक रोमन कैथोलिक आरसी परिवार से मैं जरूर आया हूँ. 10 வருடம் நான் எவ்வளவோ பாடல்களை பாடியிருக்கிறேன், எவ்வளவோ மேடைகளில் நான் பாடியிருக்கிறேன். 10 सालों में जो है उन दिनों में मैं कई गीतों को गाया है और मैंने कई मंच पर खड़े होके इस प्रकार का गीतों को मैंने गाया है. இருந்தாலும் அவரை அறிந்து ஆராதிக்கவில்லை. लेकिन मैंने उस परमेश्वर को जान के या समझ के उनकी आराधना नहीं किया. ஒரு நாளும் அவருடைய வார்த்தையை அறிந்து அவனுடைய ஆழத்தை அறிந்து அவர் என்ன செய்யக்கூடியவர் என்பதை ஒரு நாளும் அறியவில்லை. मैं उन दिनों में परमेश्वर को जरा सा भी जानता नहीं था और आराधना जान करके समझ करके नहीं करता था. ஆனா ஆண்டவர் இந்த நாளிலே அவர் எப்பேற்பட்டவர் என்பதை அறிந்து ஆராதிக்க தேவன் உதவி செய்கிறார். लेकिन आजकल के दिनों में परमेश्वर मुझे मदद करता है कि उसको जानने के बाद परमेश्वर की और गहराई में जाके जान के आराधना करने के लिए मदद करता है. இந்த அறிவு நமக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். இன்னும் ஆண்டவருடைய கிட்டி சேர்வதற்கு நம் தேவன் எப்பேற்பட்டவர் என்ற அர்த்தத்தை அறிந்து ஆராதிக்கும் போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு படி முன்னேறி செல்ல உதவி செய்கிறது. परमेश्वर कौन है कैसा है करके और समझ के जानकारी रखे और आराधना में प्रवेश करेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत लाभ को वो पहुंचाने वाली बात है. ஆகவே இந்த நாளிலே ஒரு வசனத்தை எடுத்து தேவன் எப்பேற்பட்டவர் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார் என்பதை அறிந்து ஆராதிக்கலாம். आज भी एक वचन को हम निकालेंगे. परमेश्वर कौन है कैसा है किस प्रकार हमें अगुवाई करता है करके हम देखेंगे. ஏசாயா 40:11வது வசனம். यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय 11वां वचन. वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकुवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से ले चलेगा. மெய்ப்பனை போல தமது மந்தையை மேய்ப்பார், ஆட்டுக்குட்டிகளை தமது புயத்தினால் சேர்த்து தமது மடியிலே சுமந்து கரவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். இங்கே மேய்ப்பன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ परमेश्वर के बारे में चरवाहा करके दर्शाया गया है. அதாவது கர்த்தர் தமது மந்தையை மேய்ப்பனை போல நடத்துவாராம். लिखा है कि परमेश्वर चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा. அதுவும் எப்படி நடத்துவாராம்? वो भी किस प्रकार वो चराएगा? ஆட்டுக்குட்டிகளை தமது புயத்தினால் சேர்த்து மடியிலே சுமந்து நடத்துவாராம். वो भेड़ों को बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे चलाएगा. புயம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் यहाँ जो भुज या अंकवार करके जो लिखा गया है वो क्या है? ஷோல்டர். उसको कहते हैं कंधा. அதோடு கூட அந்த வசனம் நிறுத்தாமல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கரவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவாராம். और आखिरी में ये भी लिखा है कि दूध पीने वालियों को धीरे धीरे चलाएगा. அதனால கரவலாடுகளை துரிதமாய் நடத்தும் போது அது மடிந்து போகுமா. दूध जो पिलाने वालियों को अगर जल्दी जल्दी ले जाएंगे तेजी से ले जाएंगे वो गिर के खत्म हो जाएंगे. சோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி கர்த்தர் மெதுவாய் நடத்துவாராம். इसलिए उन बच्चों को परमेश्वर उनके अनुसार धीरे धीरे ले चलेगा. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் इससे हम क्या समझते हैं? மேய்ப்பன் என்றால் என்ன? चरवाहा का मतलब क्या है? நிலைமை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிறவன் தான் மேய்ப்பன். परिस्थिति को अच्छी तरह समझ के जो चलाता है उसी का ही नाम है चरवाहा. சோ இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு எப்படி இடைப்பட விரும்புகிறார் என்றால்
इसलिए इस बोर के घड़ी में परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार बर्ताव करता है, நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து हमारी परिस्थिति वातावरण को अच्छा से समझ के நம்மை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारी परिस्थिति को वातावरण को अच्छी तरह समझ के चलाने वाला परमेश्वर हमारे संग है। பல நேரங்களில் நம் நிலைமை என்னென்று நமக்கே தெரியாது. कई बार हमारी परिस्थिति के बारे में हम खुद नहीं जानते हैं। மற்றவர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்னாச்சு என்று கேட்டால் நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். जरूर और लोग पूछेंगे क्यों आप ऐसे हैं, क्या हो गया, तो उनके लिए जरूर कुछ कुछ तो जवाब देते होंगे। ஆனா எல்லாம் சொன்னதுக்கு பிற்பாடு யோசித்து பார்த்தால் அதுல 50% தான் நாம் சொல்லியிருப்போம். लेकिन सारे कारण को उनको बताने के बाद अगर हम बैठ के सोचेंगे तो सिर्फ 50% बातों को ही उनको हम कहाएं। ஏன்னா எல்லாவற்றையும் அப்படியே நமக்கு சொல்ல தெரியாது. क्योंकि सारी हालत को समस्याओं को हमें बोलना नहीं आता। அதுபோல் கேட்கிறவர்களுக்கும் புரியவும் புரியாது. इसलिए समझने वालों को भी वो बातें जब बताया जाएगा समझ में नहीं आता। ஆனால் கர்த்தர் நம் நிலைமையை அறிந்து நடத்துகிறவர். लेकिन परमेश्वर हमारे हालात को समझ के अगुवाई करने वाला है। ஏனென்றால் நமக்காக பாதையை நியமித்த கர்த்தருக்கு நம்முடைய பலன் என்ன என்பது தெரியும். क्योंकि हमारे लिए मार्ग बनाने वाले परमेश्वर के लिए मालूम है कि हमारी परिस्थिति क्या है। இந்த வசனத்தில் பார்த்தோம் என்றால் கரவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவாராம். यहाँ वचन में लिखा है दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ஆனால் கர்த்தருடைய வேகத்துக்கு முன்னாடி ஒருவனும் நிற்க முடியாது. लेकिन परमेश्वर का जो वेग है, उनका जो चलने का ताकत है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ஏனென்றால் எலியாவின் நாட்களில் பார்க்கலாம். வசனம் 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 46வது வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि पहला राजाओं की किताब में हम देखते हैं, पहला राजा 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं 46 वचन में, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। கர்த்தரின் கரம் எலியாவின் மேல் இருந்ததால் எலியா ஆகாபின் ரதத்துக்கு முன்னாடி ஓடினாராம். परमेश्वर के हाथ जो है एलिया पर ऐसी हुई, इसके कारण वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे वो इज़राइल तक दौड़ता गया। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? ஆகாபின் ரதத்தை காட்டிலும் கர்த்தருடைய கரத்தின் வேகம் பெரிது. आहाब के रथ से बढ़कर परमेश्वर के हाथ का जो वेग है वो ज्यादा रहा। ஆனால் அவ்வளவு பெரிய தேவன், அவ்வளவு வேகமானவர் இங்கே தம்முடைய ஆடுகளை அதன் நிலைமையை அறிந்து மெதுவாய் நடத்துகிறார். उतना वेग से चलने वाले, उतना तीव्रता से चलने वाले परमेश्वर का यहाँ पर उन वचनों में यशाया में देखते हैं, धीरे धीरे वो उनको ले चलेगा। ஆம், நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற தேவன் நம் தேவன். इसका मतलब यह है कि हमारे हालात को, हमारी स्थिति को अच्छी तरह समझकर हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளலாம். யாத்ராகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन। இங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டு வருகிறார். यहाँ निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं इजराइल लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के ले आया। வாசிக்கலாம். யாத்ராகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 17 18 முடிய. निर्गमन 13वां अध्याय 17 वचन से 18 वचन तक देखेंगे। 13 का 17 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग में नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। பார்வோன் ஜனங்களை போகவிட்ட பின்பு ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனமடிந்து எகிப்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தரின் தேசம் வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தரம் வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார். அதாவது சமீபமாய் போகிறதற்கு பாதை இருந்தும்
தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தவில்லை. यहाँ जरूर छोटा मार्ग था, जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर उस मार्ग में होके उनको नहीं चलाया. மாறாக ஜனங்களின் நிலைமையை அறிந்து செயல்படுகிறார். लेकिन परमेश्वर उन लोगों को हालात को समझ के उनको चक्कर खिला करके घुमा करके ले गया. ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனமடிந்து போவார்கள் என்று அறிந்து வேறு வழியாய் நடத்துகிறார். लिखा है कि अगर लोग युद्ध को या लड़ाई को देखेंगे तो पछताकर मिस्र को लौट जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए वो चक्कर खिला करके घुमा करके ले गया. இங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கிறது. यहाँ इजराइल लोगों के लिए पहुंचने के लिए दो मार्ग दिखाया गया. ஒன்று ஷார்ட்கட், एक है जल्दी जल्दी शॉर्टकट है, இன்னொன்று சுத்தி போக. दूसरा घुमा करके या घूम करके जाने का. ஷார்ட்கட்ல போனா 11 நாட்கள் போய் சேர முடியும். अगर शॉर्टकट के रास्ता में जाएंगे 11 दिन सिर्फ लगते हैं, ஆனா சுத்தி போனா 40 வருடம் ஆகும். लेकिन चक्कर मार के घूम के जाएंगे 40 साल लगेंगे. இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு முன்னாடி இருந்தா நாம் எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? अगर ऐसी प्रकार का एक बात या बातें हमारे सामने दिखाई पड़ती है तो हम किसको चुनेंगे? நானா அந்த ஷார்ட்கட்டை தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன். अगर मैं हुआ होता तो शॉर्टकट रास्ता को चुन लेता. ஏன்னா எப்போதும் நமக்கு இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் மட்டும்தான் கண்ணுல தெரியும். क्योंकि हमेशा हमारे नजर में नजदीक की बातें, अभी का वातावरण की बातें ही दिखाई पड़ती है. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனை வைத்து தான் யோகிக்க முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். अभी जो हो रही है उन बातों को लेकर ही हम कई बार निर्णय ले लेते हैं. நாளை நடக்கவிருக்கிற காரியங்களை பற்றி நமக்கு தெரியாது. आगे कल और आने वाले दिनों में होने वाली बातों को हम कभी देख नहीं पाते हैं. ஆனா கர்த்தர் இங்கே பார்க்கிறார், பெலிஸ்தீன் தேசன் வழியாக போனா கொஞ்ச நாட்களுக்கு ஓகே, ஆனா அதன் பிறகு யுத்தம் வரும். लेकिन यहाँ परमेश्वर ने देखा फलिस्तियों के देश के द्वारा अगर उनके राज्य के द्वारा जाएंगे तो ठीक लगेगा, लेकिन लड़ाई हो जाएगी. इसी के चलते परमेश्वर उनको नहीं ले गया. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு யுத்தம் செய்து பழக்கம் இல்லை. इजराइल लोगों को लड़ाई करना आता नहीं था. செங்கல் அறுத்து தான் பழக்கம். उनको सिर्फ ईंटा बनाने के काम आते थे. ஆனா பெலிஸ்தேனோ யுத்த வீரன். लेकिन फलिस्तियों शुरू से युद्ध में योद्धा रहे. சவுலின் காலத்தில் என்ன நடந்தது என்றால், शाऊल के समय में क्या हुआ था? கோலியாத்தை பார்த்து முழு சேனையும் பயப்பட்டது. उस फलिस्ती जो गोलियात को देख करके पूरे सेने कांपता था इजराइल का. பெலிஸ்தியர் என்றாலே யுத்த வீரர்கள். फलिस्ती का कहा जाएगा कि दूसरा नाम से कि युद्ध में वे माहिर है. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வில்லையும் அம்பையும் கூட பிடிக்க தெரியாது. लेकिन इजराइल लोगों को धनुष पकड़ना नहीं आता, तीर चलाना नहीं आता. அதனாலதான் கர்த்தர் ஜனங்களின் நிலைமையை அறிந்து நடத்துகிறார். इसलिए परमेश्वर लोगों की हालात को समझ के उनको चलाना शुरू किया. எப்போதும் நம் வாழ்க்கையில் இரண்டு பாதை இருக்கும். हमारे जीवन में हमेशा दो मार्ग दिखाई पड़ता है. ஒன்று நாமாகவே நடக்கிற பாதை, एक हम अपने से चुनकर अपनी इच्छा से चलने का मार्ग दिखाई पड़ेगा. இன்னொன்று தேவனால் நடத்தப்படுகிற பாதை. दूसरा परमेश्वर के मार्ग जो परमेश्वर अगुवाई करने के लिए रखा है वो. நாம் நாமாகவே நடக்கிற பாதையில் வரும் காரியங்களை நம்மால் ஃபேஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாம போகலாம். हम अपने आप को जब चुनते हैं उसमें आने वाली बातों को, भविष्य में होने वाली बातों को सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ஆனால் தேவனால் நடத்தப்படும் போது எந்த காரியத்தை நம்மால ஃபேஸ் பண்ண முடியாதோ அந்த பாதையில் கர்த்தர் நம்மை நடத்தவே மாட்டார். लेकिन परमेश्वर जो है, जो मार्ग हमारे लिए रखा है, जिस मार्ग में हम हार जाएंगे तो उस मार्ग में होके हमें नहीं ले चलेगा. இப்போ சிலவங்களுக்கு தோணலாம், என்னால தாங்க முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனையை அனுபவிக்கிறேனே, ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்கிறது என்று யோசிக்கலாம். कुछ लोग यहाँ सोचते होंगे कि मैं जो समस्या झेल रहा हूँ, झेल रही हूँ, वो मेरा चित की ऊपर की बात है या सीमा के ऊपर की बात है, और लोगों के जीवन में नहीं होता, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? இரண்டு கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். आप दो प्रश्नों को सामने रखिए उस समय. நான் ஏன் இப்படி நான் என் இஷ்டப்படி நடக்கிறேனா அல்லது கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிறேனா என்று. एक है कि क्या मैं अपनी इच्छा से चल रहा हूं या परमेश्वर से चलाया जा रहा हूं. சரி, அப்படியானால் கர்த்தரால் நடத்தப்படும் போது பிரச்சனை வராதா?
क्या आप सोचेंगे परमेश्वर जब अगुवाई करता तो उस समय समस्या नहीं आता? வரும். ஆனால் जरूर आएगा, लेकिन ஆனால் கர்த்தரின் கரம் இருக்கும். परमेश्वर के हाथ आपके पीछे संभाला रहेगा। இங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் யுத்தத்தை கண்டால் மனமடிந்து போவார்கள் என்று வேறு வழியாய் நடத்துகிறார். यहाँ साफ लिखा है कि इजराइल लोग अगर इस शॉर्टकट मार्ग में होके जाएंगे तो लड़ाई को देख के वे मिस्र में लौट जाएंगे करके वो उसको चक्कर खिला के ले गया। ஆனால் அங்கு பெலிஸ்தியர் வரவில்லை. लेकिन वहां फलिस्ती लोग नहीं आए थे, மாறாக பார்வோன் வருகிறான். लेकिन उस रास्ता में फिरौन आया। அது முழு சேனையோடு வருகிறான். फिरौन पीछे करते हुए पूरा अपनी सेना के साथ भगाया, இந்த பக்கம் செங்கடல், और सामने लाल समुद्र दिखाई पड़ा, அந்த பக்கம் பார்வோன். और पीछे देखा जाए कि फिरौन की सेना। ஆனால் என்ன நடந்தது? लेकिन हुआ क्या था? ஜனங்களோ கர்த்தர் இருந்ததால பிரச்சனையை கர்த்தர் ஃபேஸ் பண்ணினார். वहां परमेश्वर लोगों के साथ होने के चलते वहां परमेश्वर उनके बीच में खड़ा रहा। வாசிக்கலாம் யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். निर्गमन उसका 14 का 19 वचन को पढ़ेंगे। 14-19। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। அப்போது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்பாக நடந்து தேவதூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார். அவர்களுக்கு முன் இருந்த மேகஸ்தம்பம் விலகி அவர்கள் முன்னே நின்றது. இங்கு ஜனங்கள் தேவனால் நடத்தப்படுகிறதுனால் பிரச்சனை வரும்போது, जहां जब लोग परमेश्वर से, इजराइल लोग परमेश्वर से चलाए गए तो समस्या जरूर आई थी। तब ஜனங்களுக்கு முன்பாக இருந்த மேகஸ்தம்பம் விலகி ஜனங்களுக்கு பின்னாடி வந்து நிற்கிறது. लिखा है आखिरी में कि बादल का खंबा उनके आगे से हट के उनके पीछे जा ठहरा। இப்போ பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுகிறது யார்? अब समस्या को सामने करने वाले कौन है? ஜனங்கள் இல்லை, लोग नहीं है, கர்த்தர் ஃபேஸ் பண்ணுகிறார். परमेश्वर सामना करने के लिए चले आया। இப்படி கர்த்தர் நம்மை நடத்துவதால் தான் இன்னும் நாம் நிலை நிற்கிறோம். इसी प्रकार परमेश्वर हमें अगुवाई करने के चलते, ले चलने के चलते हम टिके हुए हैं। நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற கர்த்தர், हमारी स्थिति को समझ के हमें ले चलने वाला परमेश्वर। தாவீது சங்கீதத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார். भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है। சங்கீதம் வாசிக்கலாம் 124:23. 124 का 23 को पढ़ेंगे। 23வது வசனம். சங்கீதம் 124 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। 124 का 2 और 3। यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। கர்த்தர் தாமே நமது பக்கத்தில் இராவிட்டால் அவர்கள் நம்மை உயிரோடு விழுங்கி இருப்பார்கள். நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற கர்த்தர். इसका मतलब हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह समझ के हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। தேவனிடத்தில் ஒருபோதும் ஆண்டவரே இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க நாம் கேட்க கூடாது. परमेश्वर से कभी भी ये नहीं कहना है कि ऐसा प्रभु कीजिए, वैसा प्रभु कीजिए। நாம் எதுல கேட்கிறோம்? மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை கம்பேர் பண்ணி கேட்கிறோம். हम क्यों परमेश्वर से ऐसे बोलने लगते हैं? और लोगों के साथ तुलना करके देख के परमेश्वर से बोलने लगते हैं। மற்றவர்கள் நிலைமை வெளியே பார்க்கும்போது எந்த குறையும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். और लोगों का जीवन में बाहर देखेंगे तो लगेगा कि उनका जीवन सही से चलता हो, ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தால் தான் அவருடைய கஷ்டம் நமக்கு புரியும். लेकिन भीतर वे भी कष्ट के साथ, दुख के साथ चलते होंगे। எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தம்பி இருந்தாரு. और मैं एक भाई को जानता था। நல்ல வேலையில நல்ல கை நிறைய சம்பாதிச்சாரு. वो भाई जो है बहुत कमाते थे, अच्छे काम करते थे कंपनी में। 95,000 வாங்குவாரு. उनका सैलरी जो है 95,000 था महीना में। 95,000 சேலரி வாங்கின ஒரு வாரம் தான் கையில 100 ரூபாய் கூட இருக்காது. लेकिन एक ही महीना के अंदर पूरा खर्च करता था
सिर्फ 1 रुपया और 2 रुपया भी उनके हाथ में बचता नहीं था। அந்த மாதத்தை ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். फिर उसके बाद जो दिन बच गए उसको चलाना उनको बहुत मुश्किल की बात रही। ஹஸ்பண்ட் வைஃப்க்குள்ள ஒற்றுமை கிடையாது. पति पत्नी के बीच में कभी कभी झगड़ा होता था। பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாது. उनके बाल बच्चों को पालन पोषण नहीं किया जा रहा था ஒரே கடன் பிரச்சனை. और उनका वे कर्जदार हो गए। ஆனா வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது लेकिन बाहर ही उनको देखा जाए என்ன சொல்லுவாங்க? लोग क्या कहेंगे? அவங்களுக்கு என்னப்பா ராஜ வாழ்க்கை, நல்லா கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறான்னு उनका சொல்லுவாங்க. इतना सैलरी है, इतना काम है, अच्छा काम है करके लोग उनको देखे ऊपर ही बोलते होंगे। சோ மற்றவர்களை பார்த்து கம்பேர் பண்ணி ஆண்டவரே இப்படி நடத்தும் அப்படி நடத்துங்கன்னு நாம கேட்க கூடாது. इसलिए परमेश्वर से औरों से तुलना करके देखने के बाद प्रभु हमें वैसा ही चलाइए, उनके समान बनाइए करके नहीं बोलना। தேவனால் நடத்தப்படுகிறதில்தான் நாம் இன்னைக்கும் எல்லா பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் நிலை நிற்கிறோம். परमेश्वर से अगर अगुवाई पाते जाएंगे, अगुवाई किए जाने के चलते ही अभी तक हम सही रास्ता में बैठे हैं। நமக்காக ஒரு பாதையை தெரிந்து கொண்டு அதிலே நடந்தோம் என்றால், न हमारे लिए एक रास्ता को चुन के उसी रास्ता से अगर होके चलेंगे तो நமக்கு எதிராக சத்துரு வெள்ளம் போல வரும்போது நம்மால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. तो हमारे सामने शत्रु एक बाढ़ के नाई जब आएगा तो उस समय हम अपने रास्ता चुनने के चलते ठीक नहीं पाएंगे। ஆனால் தேவனால் நடத்தப்படும்போது சத்துரு வெள்ளம் போல வந்தாலும் ஆவியானவர் நமக்காக கொடியேற்றுகிறார். लेकिन जब परमेश्वर हमें चलाएगा, शत्रु बाढ़ के नाई जब आएगा तो भी परमेश्वर हमारे लिए उस जय का झंडा को फहराएगा। மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் அநேகம் உண்டு. बाइबल बताती है मनुष्य के लिए ऐसे कई मार्ग है जो ठीक दिखाई पड़ता है, ஆனால் அதன் முடிவோ மரண வழிகள். लेकिन उन सारे मार्गों का अंत मृत्यु में होता है। நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற கர்த்தர், हमारी परिस्थिति को अच्छी से समझ के चलाने वाला परमेश्वर है। நம்மால ஃபேஸ் பண்ண முடியாத எந்த காரியத்தையும் கர்த்தர் அனுமதிக்க மாட்டார். जिन बातों को हम सामना नहीं कर पाएंगे उन बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर होने नहीं देता। அப்படி அவர் நடத்துவாரானால் அதில் அவர் கிருபை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும். अगर ऐसे परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, करेगा तो उसका अनुग्रह सिर्फ हमारे लिए काफी அதை है। நம்மால ஃபேஸ் பண்ணவும் முடியும். और इसी के चलते कोई भी बात आए उसको सामना करने की ताकत हम पाते हैं। எரேமியாவை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுக்கும் போது जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, எரேமியா சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே நான் சின்ன பிள்ளை. यिर्मयाह कहता मैं तो बालक हूँ परमेश्वर। ஆனா கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? लेकिन परमेश्वर क्या कहता நீ है? சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லாதப்பா, तुम छोटा बालक मत कहो अपने को, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் क्योंकि என்று मैं சொல்கிறார். तेरे संग रहता हूँ। நாமும் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுகிறோம் என்றால் अगर கர்த்தர் आप- நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். अगर आप भी परमेश्वर के लिए कुछ संकट या दुख झेल रहे हैं तो ये जानिए कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। ஜனங்களை எகிப்து விட்டு வெளியே கொண்டு வந்த தேவனுக்கு जिस परमेश्वर ने लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के ले आया, கானானை நோக்கி எப்படி நடத்தணும்னு அவருக்கு தெரியும். उसको अच्छी तरह मालूम है इन लोगों को कानान की ओर किस प्रकार मैं ले जाऊं। கர்த்தர் ஜனங்களை நடத்தும் போது 2 காரியம் மனதில் வைத்து நடத்துகிறார். परमेश्वर को जब लोग अगुवाई करता है या चलाता है तो 2 बातों को मन में रख के वो अगुवाई करता है। ஒன்று, என் பிள்ளை மனமடிவாய் போய்விடக் கூடாது என்று. एक बात है कि मेरे बच्चे या मेरी संतान रास्ता में बातों को देख के न गिर जाए। 2, என் பிள்ளை எகிப்துக்கு திரும்பவும் போய்விடக் கூடாது और என்று. दूसरा, मेरे संतान उन बातों को देख के फिर अपने पुराने जीवन में मिस्र में लौट के ना जाए। நாம் சுத்தி நடந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे हम घूम के चलते हैं कोई बात नहीं, ஆனால் பழைய பாவத்தை நோக்கி போய்விடக் கூடாது. लेकिन कभी भी पुराने पाप या गंदे आदत में लौट के न जाएं। நாம் வனாந்தரத்திலே இருந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे हम जंगल के मार्ग में होके चले कोई बात नहीं, ஆனா எகிப்துக்கு மீண்டும் போய்விடக் கூடாது. लेकिन हो जाते रहे मिस्र में फिर लौट के ना जाए। கர்த்தர் நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற தேவன். परमेश्वर हमारी स्थिति को अच्छी तरह समझ के अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। கர்த்தருக்கு தெரியும் எதை எப்போது தர வேண்டும், எதை எப்படி செய்யணும் என்று. परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है किन बातों को कब इनके लिए देना है और
कैसे देना है। கர்த்தர் நம் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்து நடத்துகிற தேவன். परमेश्वर हमारी स्थिति को अच्छी तरह समझ के हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। இந்த காலை வேளையிலே इस भोर के समय में அவர் கையில் ஒப்பு கொடுக்க போறோம். उसके हाथों में हम अपने को डालने या देने जा रहे हैं। ஆண்டவரே நீர் என் நிலைமையை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீங்க. प्रभु मेरी स्थिति को आप अच्छी तरह समझते हैं நடத்தி கொண்டு வருகிறீர். और अभी तक चला के ले आए। உமக்கு சித்தமில்லாத பாதையும் அடைத்து போடுங்க ஆண்டவரே. आपकी इच्छा बिना जो बात होने वाली है उसको आप बंद करके डालिए प्रभु। என்னை சரியான பாதையில் நீர் நடத்தி கொண்டு வருகிறீர் ஆண்டவரே, நன்றி என்று நாம் இந்த ஆராதனையிலே சொல்லலாம். प्रभु हमें सही मार्ग में होके ले चल रहा है तू, इसलिए धन्यवाद करके इस आराधना के दौरान हम कहने जा रहे हैं। நம் ஒவ்வொருவருடைய நிலைமையும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவன். हमारे हर एक जन का परिस्थिति को परमेश्वर अच्छी तरह समझने वाला है। அவரை அறிந்து ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். इसलिए उसको समझ के जान के हम आराधना में प्रवेश करेंगे। ஒவ்வொருவருடைய நிலைமையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். हर एक जन का स्थिति उसको मालूम है। அதனால் நாம் அவரை அறிந்து இன்னும் ஆராதனையில் இன்னும் முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு கூட நாம் இந்த ஆராதனையை கலந்து கொள்ளலாம். इसलिए हम पूरे बल और ताकत के साथ इस आराधना में आगे बढ़ने जा रहे हैं।